Welcome back to my space called Stock Pro. I'm your host, Dr. Seema Jain. I'm a SEBI registered research analyst and founder and chief mentor at Stock Pro. So आज हम बात करेंगे आप लोग सबको आई एम श्योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जर्नी इन द स्टॉक मार्केट जो किसी का भी होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, राइट? यू एंड इवन अगर आप ट्रेडर भी हो तो भी आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। कुछ पार्ट आपकी अपनी कैपिटल का आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि ये स्टॉक मैं सेलेक्ट जो कर रहा हूँ? Of course, you will check the fundamentals, you will check, technicals, you will check every other aspect, but at the same time, अगर आपको एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है through indicator, I'm sure your decision making power will become better, right? अगर आपको इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में करना है, उसके लिए अगर आपको एक किसी इंडिकेटर का छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है तो आपको एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसमें डबल हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स आपको जो चेक करने हैं, तो फंडामेंटल ठीक होने चाहिए, टेक्निकली इट शुड बी at a reasonable price, it should not be very expensive, fundamentally it should be a good company, and technically you should be able to find when the stock has bottomed out, and the third point that you need to see whether the stock is gaining the momentum to go up or not. तो आज मैं इसी तरह के एक इंडिकेटर की बात करने जा रही हूँ और उस इंडिकेटर का नाम है ADX. So let's go to the screen and talk about ADX. So I'm going to talk about ADX. The general form of ADX is basically average directional movement index, right? And we're going to be, let me explain it to you, what is ADX and how we can use ADX to improve our trading. Okay, so one more point that I would like to tell you here is that ADX can be used for long-term positional trades and even for intraday trading, right? अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए ADX को लगाने के लिए, और अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो क्या होना चाहिए, ये मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बताऊंगी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, आप नॉट positional but even in intraday you can make good decisions. So let's start our video and talk about this particular indicator. So I'm your host Dr. Seema Jain. I have already introduced myself to you. In case you want to reach out to my team, you have all the numbers flashing on the screen, or you can go to the description box and find all the details over there. Now let me proceed ahead and talk about what is average directional movement index, or simply ADX. The ADX indicator is an average of expanding price range index values, right? How the price values are expanding. Do they have a strength? क्या उनमें बहुत एक मजबूती है कि नहीं है? जो ट्रेंड बनने वाला है या डेवलप होने वाला है उसमें कोई स्ट्रेंथ है कि नहीं है, right? ADX is a component of the directional movement system developed by Wells Wilder. The system attempts to measure the strength of the price movement in the positive and the negative directions using DMI plus and DMI minus indicators along with ADX. So abhi I'm going to take you to the screen in a few minutes. उस वहां जाने से पहले हम एक बार इस इंडिकेटर को समझ लेते हैं। तो ADX is the trend strength indicator. कितने अगर एक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है किसी स्टॉक में ऊपर जाने की या नीचे जाने की, तो वो स्ट्रेंथ कितनी है, लाइक हाउ मच इज द स्ट्रेंथ, दैट इज इंडिकेटेड बाय द ADX. Trading in the direction of a strong trend reduces risk and increases profit potential, isn't it? अगर आपको पता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है और आपने स्टॉक बाय कर रखा है तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। सपोज अगर आपको याद होगा, आपसे कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से कुछ 6-7 साल पहले, अगर आपने रिलायंस को देखा होगा तो रिलायंस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, मतलब रिलायंस अच्छा स्टॉक होने के बाद भी उसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, राइट? तो अगर आपको एक किसी इंडिकेटर के थ्रू ये पता लग जाता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी नहीं डेवलप हुई है या स्टॉक अभी वीक है, स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है ऊपर जाने की, आप उसमें थोड़ा रुक के इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो ये पूरा आइडिया जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसी तरह अगर सपोज एक जगह जाके ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है तो वो भी आप इस इंडिकेटर के जरिए पता लगा सकते हैं। सो नाउ वी गो टू the average direction index ADX is used to determine when the price is trending strongly
In many cases, it is the ultimate trend indicator. After all, the trend may be your friend, but it is sure to know who are your friends, right? And that is how we get to know in the stocks कि किस are the stocks में से किस stock में आप invest कर सकते हैं. Not only that, मैं आपको इसके लिए एक filter भी बताऊंगी जो आपको easily मिल जाएगा और उससे आप ऐसे stocks निकाल सकते हैं जिसमें कि trend अभी build up हो रहा है. Now, how this indicator works? Wilder suggests that the strong trend is presented when the ADX is above 25 and no trend is present when it is below 20, right? किस तरह का ट्रेंड हो सकता है? या तो स्टॉक ऊपर जा रहा हो या स्टॉक नीचे जा रहा हो. These are only two trends. अगर horizontal है, that's not called a trend, right? Either the stock should move up or stock should go down, right? These are the two trends. It's called markup or markdown. But when it is horizontal, when the stock is not doing anything, that's not a trend. So if the ADX is declining, it could be an indicator that the market is becoming less directional and the current trend is weakening. You may want to avoid trading systems at the as the trend changes, right? How this indicator works, if the ADX is declining, it could be an indication that the market is becoming less directional. So suppose this indicator is going up and then suddenly it starts declining, like there is a plateau that comes, एक ऊपर जाके exhaust हो गया trend, आपको वहां से पता लगना शुरू हो जाएगा कि स्टॉक में अब ट्रेंड थोड़ा exhaust हो रहा है. If after staying low for a lengthy time, the ADX rises by 4 or 5 units, for example, अगर 15 से 20 हो जाता है suppose ADX, it may be giving a signal to trade the current trend, right? If the ADX is rising, then the market is showing a strength and the value of ADX is proportional to the slope of the trend. So I will be explaining you this in detail through the graph. ADX is simply the mean or average of the values of the DX over the specified periods. So again, you have the contact detail of my team. So what I'm going to do, I'm going to take you to the graph, and from there we will be understanding what could be done. So I have opened a graph, of Reliance. I can pick up any other stock. तो अब मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो green line है, that is DMI positive plus. Red line is DMI negative. Let me pick up a pen and then I will explain you. This is DMI plus, right? This green one. This one is DMI negative, right? They cross over each other. कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, right? और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है बीच में से, ये ADX है, right? I hope you are being able to see. ये ADX की लाइन है, this, right? ये जो आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो इसका स्लोप आपको बताता है, ये स्लोप है, राइट? ये स्लोप आपको बताता है कि ट्रेंड कैसा है. आप यहाँ देखोगे तो फ्लैट हो गया है, राइट? इसका मतलब ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है. यहाँ पे आके कहीं यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है. ये जब स्लोप शार्प था तो स्टॉक ऊपर जा रहा था. यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया है. मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया, नोट दैट, राइट? आई हैव टेकन डेली टाइम फ्रेम. सो यहाँ जाके स्टॉक थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया, फिर इट स्टार्टेड मूविंग. यू कैन सी यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया एंड देन देयर इज अ शार्प डिक्लाइन, राइट? यहाँ पे आके पीक बन गया एंड देन शार्प डिक्लाइन. आफ्टर दैट स्टॉक हैड फॉलन डाउन क्वाइट अ बिट, राइट? नाउ हमको क्या करना है, हमको इसमें वी विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग सम इन्वेस्टमेंट. कोई भी स्टॉक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक TCS, राइट? और TCS में हम देखते हैं कि कैसे हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है. यहाँ पे देखो, इफ यू नोटिस, DMI is going down, DMI negative is going down, DMI positive is going up, and ADX is in between, right? ADX जो है ग्रीन और रेड के बीच में होनी चाहिए, राइट? दैट्स अ रूल. एंड इसकी वैल्यू जो है 20 के ऊपर होनी चाहिए, रफली अबाउट 25 होनी चाहिए. स्लोप ऐसे होना चाहिए, टिल्टेड. यू कैन टेक एन एंट्री. तो समवेयर हियर आपकी एंट्री बनती है और यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक में एक जबरदस्त मूवमेंट है. तो व्हाट आई हैव डन, मैंने एक कैश का स्टॉक पिक किया है आपके लिए, खासतौर से कैश का स्टॉक. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव करके ट्रेड है. यहाँ पे आपको देखना होगा कि DMI प्लस हैज गॉन अप, DMI नेगेटिव हैज गॉन डाउन, एंड जब भी
ADX 20 के ऊपर जाता है, राइट, 20 के ऊपर जाता है, आप इसमें एक एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे कहीं पे अगर मैं इसमें एक पोजीशन बताऊं आपको तो कहाँ पे क्रिएट की जा सकती है, I'll just explain you. Somewhere here we can take an entry. यहाँ पे हमें एक एंट्री मिलती है, and what you can see here that the stock continues to move in the upward direction from here, right? So this is how ADX can be used when it has काफी देर तक जब prolonged indecisiveness रही हो, फिर उसके बाद DMI प्लस ऊपर जाता है, DMI नेगेटिव नीचे जाता है, और ADX नीचे से ऊपर क्रॉस करता है 20 को, that is when we can take an entry, right? Let me take some more examples to explain you. कोई और ले लेते हैं, जैसे महालाइफ है, राइट? महालाइफ कोई भी कैश का स्टॉक आई वांट टू पिक अप। कभी भी आप देखेंगे, अगर जैसे यहाँ पे देखिए DMI ऊपर गया है, DMI पॉजिटिव ऊपर गया है, DMI नेगेटिव नीचे गया है, और ADX बीच में है, राइट? इस जगह पे आपको एक एंट्री का इंडिकेशन मिल रहा है। तो जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आप एंट्री ले सकते हैं, and you can see how much momentum has been created, right? The trend has become very very strong, right? कोई और स्टॉक पिक कर लेते हैं, जैसे कैश का कोई स्टॉक उठाते हैं, मे बी BEML लेते हैं, राइट? BEML में कुछ अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो द रूल, क्या रूल है, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि DMI प्लस ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही हो, DMI नेगेटिव नीचे जा रही हो, एंड ADX नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही हो, दैट्स द रूल, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। ADX ऊपर से नीचे नहीं आ रही हो, ADX नीचे से ऊपर जा रही हो, तो यहाँ पे एक जगह पे आपको एक एंट्री मिल रही है, राइट? आई विल शो यू कि इस जगह पे आपको एक एंट्री मिल रही है, DMI जब 20 को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे इस जगह पे आपको एंट्री मिल रही है। आप इस कैंडल के हाई को मार्क करके रखिए, इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है, आप इसमें बाय कर सकते हैं। 1441 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, 2090 तक स्टॉक जाता है, राइट? सो दैट्स द ब्यूटी। लेट्स टेक अनदर, कोई और स्टॉक पिक करते हैं, इक्लक्स, राइट? इक्लक्स में अगेन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट मुझे क्या चाहिए, स्टॉक में ADX नीचे से ऊपर क्रॉस करे, राइट? ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर क्रॉस करे, राइट? तो यहाँ पे कहीं पे एक अपॉर्चुनिटी नहीं, दिस इज DMI नेगेटिव ऊपर है, DMI पॉजिटिव नीचे है, सो दिस इज नॉट अ ट्रेड। बट हियर यहाँ पे DMI पॉजिटिव ऊपर है, DMI नेगेटिव नीचे है, और ADX जो है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट? आई एम गोना मार्क इट सो दैट यू कैन ऑल सी इट। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री बनती है, और आपको स्टॉक यहाँ पे आपने अगर बाय किया 2577, it goes to about 2930, right? So cash stocks में it really works well. This is a very beautiful example. क्यों? क्योंकि ADX जो है नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये DMI प्लस, DMI नेगेटिव, ADX ऊपर से क्रॉस कर रहा है, और आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड पॉइंट, राइट? यहाँ पे कहीं पे आपको एंट्री मिल रही है इस स्टॉक में, राइट? सो दिस गिव्स यू गुड एंट्री। यहाँ पे आप 1350 पे एंट्री करते हैं, और 1500 तक आपको ये स्टॉक लेके जाता है। स्ट्रेंथ विल टेक यू अप टिल अबाउट 1500. So this is how you can really work upon using ADX. A little early entry, अगर आपको थोड़ा सा और जल्दी एंट्री चाहिए, तो आप जहाँ पे DMI प्लस क्रॉस कर रही है, और उसके बाद DMI प्लस पॉजिटिव स्लोप में आ रही है, वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्राइस थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। प्राइस थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है, राइट? इस जोन में कीपर नोट दैट DMI प्लस हैज गॉन अप, और जैसे ही इसका स्लोप स्टीप होता है, आप थोड़ा अर्ली एंट्री ले सकते हो, राइट? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं दो तरीके मैंने आपको बताए कि ADX अगर 20 के ऊपर जाती है, राइट, या फिर DMI प्लस क्रॉस करती है DMI नेगेटिव को, और उसका स्लोप स्टीप हो जाता है, एकदम से ऐसे स्लोप हो जाता है, तब आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर, राइट? सो ये दो तरीके हुए। लेट्स सी इफ आई गेट another entry in this particular stock. So here ये एक बहुत बढ़िया, but this is a negative one, right? So I'm going to ignore it. और कहीं पे देखते हैं, यहाँ पे see this is a very beautiful entry, this place, right? ADX आप देखेंगे
green DMI is up, the DMI negative is below, and ADX is crossing from bottom to top. So you do get an entry just when the ADX DMI plus and DMI negative is crossing, accumulation is getting over, and DMI plus is getting a steep slope, right? And ये आपको ADX confirm कर रहा है कि stock में strength है, right? आप इसमें buying कर सकते हैं. Look at this momentum that you get from, I'll show you what you get. यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको total distance मिलता है. From 796 to about 1222 is what you get, right? So this is a simple momentum trader which can tell you where the buyers are giving strength to the stock, right? Strength is coming in. So a lot of things that I have told you today. एक तो जब DMI plus is crossing DMI negative, green line रेड लाइन को क्रॉस कर रही है. क्रॉस करने के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है जब ग्रीन लाइन का स्लोप काफी स्टीप हो जाए, मतलब ऐसे ग्रीन लाइन ऐसे खड़ी हुई दिखाई दे आपको, और जो ब्लू लाइन है विच इज ADX वो 20 के ऊपर, तब आप स्टॉक में बाइंग कर सकते हो. और ये खास तौर से कैश स्टॉक्स के लिए. प्लीज अगर आप बैक टेस्ट करिए, अपने ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे जाइए, ADX लगाइए और बैक टेस्ट करिए. अगर आपको कन्विक्शन आता है आप आगे ट्रेड कर सकते हैं, वेयर you can find out stocks in which ADX's crossover is taking place. So as I promised you, I'm going to give you a screener. आप charting website पे आइए और just go to the screeners और वहां पे आके आप ADX टाइप करिए और सर्च करिए, right? जो आपको पहला स्क्रीनर मिल रहा है, right, which is ADX DI positive crossover. Go for that and you will be able to filter out some stocks, right? आपको इसके बाद कैसे एंट्री लेनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक स्टॉक दिख रहा है मुझे, NRB बेयरिंग, राइट? NRB बेयरिंग, राइट? सो here it is, NRB bearing. So here the crossover is taking place, right? So you can just keep these. So here if you notice the crossover is taking place, right? But I have told you how do you trade it. The DMI has to be above 20 in the daily time frame, right? If not daily, at least hourly time frame, it should definitely be above 25. So here you see it's above 25. You have a great entry in this particular stock, right? So simple, go to the charting in the screener, type ADX, and you will be able to find out ADX and filter out stocks from there and take an entry, right? So hope you like the video. If you like the video, please give a thumbs up and share with your friends. And we do live trading where people make a lot of money. Join us and join us on Telegram to get the live trading link. All the best. Take care. See you.